Good morning, students. Yes, good morning, students. Yesterday we tried logging in with my mobile. You were hearing me from my mobile, okay? But right now I am directly speaking on the computer. So I want to check again. Can you hear me? आवाज clear येतोय का बेटा? Okay, still let me have a poll. Quick poll. It seems that it is clear for most of the students. Let's have a very quick poll and also type so that I can be confirmed that it is clear. Okay, it seems clear for everyone. Chalo, fantastic. Yes, good morning to all those who have just joined. We are having this pen tab, which we use for our screen. Okay, and this is the pen we have. So different styles in different timings. This is the timing of online education. So चला जवळपास सगळे स्टुडंट्स आलेले आहेत. आय थिंक स्क्रीन इथे सध्या विजिबल नाहीये. समटाइम्स देयर इज अ इंटरनेट इश्यू, सो स्क्रीन मे नॉट बी विजिबल. तेव्हा आपण ऑडिओने कंटिन्यू करूयात. मला आधी कालच्या होमवर्क बद्दल विचारू द्यात स्टुडंट्स. डिड डिड यू फाइंड लॉज ऑफ इंडायसेस? तुम्ही लॉज ऑफ इंडायसेस शोधून त्याच्यावरती दोन दोन एक्झाम्पल लिहू शकलात स्टुडंट्स? टाईप येस और नो. Yes, very good. Very good, students. Very good. Fantastic. Okay. Now let me give you an easy question. Let me give you a very easy question and let us see how many of you can do it. Okay.
या क्वेश्चन मध्ये wherever there is a cap sign, that means it is power. Okay, so when I am typing, just look at the chat box. What I have typed is 10 cap 2. 10 cap 2 means 10 raised to 2, right? So 10 raised to 2 is equal to 100. 10 raised to 2 is equal to 100. All right, students, now I will type one question and then you will have a poll of A, B, C, D. So look at the question carefully. Don't type anything here. You will type it in the poll. You will have it in the poll. Okay, let me see how many of you have properly revised laws of indices. So 10 raised to 5 into 10 raised to 5 is equal to, don't write the answers, okay? I'll give you options. Is equal to 10 raised to 25 into 10 raised to x into 10 raised to x. Yeah, screen is not visible, students, because there is net issue at the academy about the screen. There is an issue. Screen yei paranta you are having the question which I have put on the chat box. Okay, I put a question on the chat box till that time, till the time we have the screen. Okay, last मध्ये 10 raised to आहे. Okay, it is 10 raised to, it's not p, it is 10 raised to. Okay, it is 10 raised to. Okay, 10 raised to 5 into 10 raised to 5 is equal to 10 raised to 25 into 10 raised to x. It's not p. I repeat the question just for clarity. I can repeat the question. I'll re-put it here. Don't hurry, घाई नका करू उत्तर देण्यामध्ये, because I am seeing that initially some students are hurrying. घाई करताय तर थोडंसं चुकीचं उत्तर येत आहे. Okay, so this is the question. Okay, 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 ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. उत्तर द्यायला लागा. You can type the answer of x. ठीक आहे, ऑप्शनची गरज नाही आहे. ठीक आहे, start typing the answer of x. चला, जे जे मला एक्सपेक्टेड चुका होत्या स्टुडंट्स, व्हॉट एव्हर द एक्सपेक्टेड मिस्टेक्स वेअर देअर दॅट आर विजिबल, दोज मिस्टेक्स आर विजिबल हिअर. बघा, 10 to the power minus 15 is the correct answer. 10 to the power minus, so x will be minus 15. That's the perfect answer, students. No doubt about it. That's the perfect answer. Okay. Let us look at some mistakes which students are having. Okay. I think now we will be able to have the screen. Yes. काही जणांनी 10 to the power 0 म्हटलंय किंवा 1 म्हटलेलं, x is equal to 0 or x is equal to 1. नक्कीच हे ऑप्शन मध्ये असणार आहे स्टुडंट्स. ठीक आहे. The first law of indices. Let us write down the laws. You must have already written. Yes, आवाजाचा नॉइज I believe बंद झाला आता. No, it is still echoing. हा, okay. आता क्लियर आहे स्टुडंट्स, विदाउट इको? नाउ इट इज क्लियर. हा, ठीक आहे. सो लॉज ऑफ इंडायसेस.
The very first law was a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m into n. Nice students, right? It is m plus n. This you have studied. Then a raised to m divided by a raised to n, right? The second law is about the division. Okay, there is no addition का law directly here. इथे काही directly addition चा काही law नाही है. Law is about division, right? So a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n, right? M minus n. And then the third law, first three laws are very important. There are other laws also, but these first three laws are very important. Batao, a raised to what now? The third law? Yes, a raised to m into n. Perfect. Perfect. Very good. Yes. Okay. So if we use these laws, and then I have given you a question, 10 raised to 5 multiplied by 10 raised to 5 is equal to 10 raised to 25 into 10 raised to x. बऱ्याच जणांनी घाई काय केली की 10 raised to 5 into 10 raised to 5 ला करून टाकलं 10 raised to 25 आणि दोन्ही साईडला कॅन्सल करून 1 उत्तर देऊन टाकलं किंवा 0 उत्तर देऊन टाकलं, एक्सचा आन्सर 0 देऊन टाकला. Is this correct, students? No, this is a mistake, right? So this was a wrong application of laws. घाई घाई मध्ये 5 5s are 25 नाही करायला हवं होतं. What is the correct thing? It will be 10 raised to the power 10, right? Left hand side is 10 raised to the power 10 आणि right hand side is 10 raised to the power 25. We can bring in division, so we have 10 raised to the power x here, right? So x value will be clearly 10 minus 25 as per the law. Second law, 10 minus 25. So x is minus 15, right? इझी क्वेश्चन वाटत असेल, पण बघा काही जणांची नक्की चूक होते. काही ज्यांनी डेअरिंग केली मस्त आन्सर द्यायला, त्यांच्यापैकी काही जणांचं चुकलंय. बऱ्याच जणांनी उत्तर पण दिलं नाहीये बघा. त्यांचंही चुकीचं आलं असेल किंवा आलं नसेल. ओके, सो प्लीज राईट दिस डाऊन. ओके, फर्स्ट हे लॉ लिहून घ्या. ओके, फर्स्ट राईट डाऊन दिस लॉज. या लॉज मध्ये एक रेस्ट्रिक्शन असतं स्टुडंट्स. इन ऑल दीज लॉज देर इज वन रेस्ट्रिक्शन. A cannot be equal to 0. A is not equal to 0. That is a necessary condition. Base, you are not having 0. Especially for the second law. But in general also you can take base not equal to 0. Okay. Especially for second one, you cannot take, because second has a denominator. Denominator mein there cannot be 0. Division by 0 is not allowed. Right? That's the reason. तो क्विकली हे लॉ लिहून घ्या स्टुडंट्स. तिन्ही लॉ लिहून घ्या. तो क्वेश्चन लिहा. देन आई गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Q for question. Okay, Q for question. Also A shouldn't be 1. No, A can be 1, students. A can be 1. Isha Shah is saying A can be 1. In these laws, A can be 1. Just check out. 1 raised to काही असेल तर 1 raised to काही अजून असेल तर 1 raised to मध्ये आन्सर येईल. ऍब्सोल्युटली. सध्या A can be 1. तुला जे आठवत आहे ते एका वेगळ्या लॉ साठी ते रेस्ट्रिक्शन येऊ शकतात. सध्या इट इज A1 is allowed, right? For these three laws, A is equal to 1 is allowed. Okay. Yes. Okay. हे लिहून घेतलंय स्टुडंट्स, this example also. I want it in your notes, students. Okay. क्लासच्या नोट्स मध्ये. Yes. Okay.
Yes. Next question, students. Okay, somebody is having a question. त्या क्वेश्चनचा पण आन्सर मी करतोय. Just let me finish my question also. On the board is equal to 3 raised to x असेल. परत you have to find x. Okay. In all these questions you have to find the value of x. Meanwhile, Sanskar's question chat box where everybody can see. Can we write as bases as equal and then powers become equal? Okay, Sanskar's question. Can we write as bases as equal and then powers become equal? Sanskar, just wait. Okay. Bases equalचा लॉ वेगळा आहे. Bases equalचा law is different. Okay. 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 Fantastic. I am getting very good answers. Okay. बऱ्याच लोकांचं एक कॉमन आन्सर येत आहे 34 येत आहे आणि मग काही जणांचं आन्सर येत आहे की सर इट कॅन नॉट बी आन्सर्ड बिकॉज ऍडिशन साठी लॉ नाही आहे. मला ते उत्तर पण खूप आवडलं. I agree. There is no law for addition. There is directly no law for addition. है ना, indices मध्ये addition साठी lawच नाही आहे. पण 34 उत्तर पण students ने बरोबर काढलेलं आहे. Both the things are correct, students. I very much appreciate ज्यांनी quickest answer दिलेलं असेल याचा. 34 हे correct answer ज्यांनी quickest दिलेलं आहे. Just let me see the names of the students. Aboli, Arya, Pranav Kumar, Varun, Vinayak, Nandan, Nisha, Prathamesh, Arpit, Sharvil, Prateek. These students and many others have answered very quickly. Even Nilkant's answer I liked. Okay, the question cannot be answered directly as there is no law for addition. In one sense it is correct because जे 3 लॉज आपण बघितले त्याच्यामध्ये डायरेक्टली कुठे ऍडिशनचा लॉच नाहीये. हे बघा स्टुडंट्स, या तिन्ही लॉ मध्ये डायरेक्टली बेस सेम असताना पॉवर्स मध्ये वेगवेगळे असले तर चालतील पण बेस सेम आहे. त्यावेळेस वी हॅव अ लॉ फॉर मल्टिप्लिकेशन, वी हॅव अ लॉ फॉर डिव्हिजन अँड वी हॅव अ लॉ फॉर पॉवर. Right, this is called as a product law or multiplication law. Right, the second one is called as division law. Second one can be called as division law, and the third one can be called as power law. But there is nothing like addition law of indices or subtraction law. Nah, there is nothing. Then how do you do this question? Kaise students ne 34 kiya hua hai? Please understand, students. What is the meaning? If I ask you just a basic simple revision so that everybody understands. If I ask you what is 7 plus 7 plus 7, what is the answer? If what is 7 plus 7 plus 7? 21 is the answer, right? And see how Anand has written the answer. Anand has written the answer as 7 into 3. 7. Isn't it correct, students? Because 7 plus 7 plus 7 का मतलब ही है 7 into 3. Multiplication का meaning ही वो है. Multiplied by 3 means same number is added to itself. तो अब यहाँ पे देखो 7 के बदले कुछ एक बड़ा सा नंबर है. तो 3 raised to the power 33 plus 3 raised to the power 33 plus 3 raised to the power 33. Can we write it 3 raised to the power 33 multiplied by 3? Say yes or no. Yes, 3 raised to the power 33 multiplied by 3. That's how we can write it. And if it is multiplied by 3, students, look in the next step what I am doing. 3 raised to the power 33 into 3. So 3 can be written as 3 raised to the power 1. 3 can always be written as 3 raised to the power 1 क्योंकि power 1 करना मतलब वही number है. Right? कोई square नहीं किया, cube नहीं किया, number itself means it's power 1. Now you can apply which law? First, second, ki third? Which law will we apply, students? First law, right? The very first law. So 33 plus 1, right? It is becoming 33 plus 1. So it is 3 raised to 34. लिहून घ्या students. ज्या एक 20 एक स्टुडंट्सनी जवळपास क्विक आन्सर दिलं होतं नाईसली करेक्टली
व्हेरी हॅपी विथ देम. 20 पेक्षा जास्त स्टुडंट्सने दिला होता. ऑल अदर स्टुडंट्स प्लीज राईट डाऊन. कोणाला नसेल समजलं तर आस्क, आय विल रिपीट इट. ओके. Very good. Very good. Superb. Very good. Fantastic. Quick answers. Yes. Hmm. X will be equal to 19. X will be equal to 19. चला जवळपास सगळ्यांचे उत्तर येतात आहे. How is the answer correct? We have to write 100 is 10 square. 10 square. So this will be the step. चला ज्यांना येस काहींचं चुकलंय त्यांनी करेक्ट केलं स्वतःचं उत्तर. दॅट्स ओके. सो नेक्स्ट स्टेप स्टुडंट्स, पहिल्या याच्यामध्ये थर्ड लॉ लागणार आहे, पॉवर लॉ. 10 स्क्वेअर रेज टू 8. वी आर मेकिंग द बेस 10 ना. एव्हरीवेअर वी आर मेकिंग द बेस 10. सो 10 टू द पॉवर इट विल बी 16 इंटू 10 टू द पॉवर 3. राईट. क्विकली लिहून घ्या स्टुडंट्स. इझी वाटत असेल तरी एकदा लिहून घेण्यामध्ये शॉर्टमध्ये काही हरकत नाहीये. 16 प्लस 3. So you will have x answer is equal to 19. Right? Therefore, x is equal to 19. Perfect. अच्छा, कोणाला जर स्पीड जास्त झाली असेल, थांबायचं असेल तर प्लीज टाईप वेट म्हणून टाईप करा. WAIT वेट करा म्हणून. हा थांबा म्हणून THAMBA थांबा टाईप केलं तरी आय एम ओके. ठीक आहे. भाषेचा इथे काही विषय नाही. यू जस्ट कन्व्हे टू मी की सर थांबायचं आहे. सो वी कॅन वेट. ओके. Otherwise, let's go to the next question. Now, this is a little interesting question.
ओके, चला. मी पहिले टॉप 5 मुलांनी ज्यांनी करेक्ट उत्तर दिलंय क्लासमध्ये त्यांचे नाव घेणार आहे. त्यांचे नाव लिहिणार आहे इथे. दोज हू गॉट द करेक्ट आन्सर क्विकेस्ट. ओके. भूमिका, अवंतिका, प्रथमेश, अबोली and Arpit Mutha. These 5 students. Even after that, Sushmita, Abhay, Sarth, Vedant, Avinash, Abhay Patil, Sakib, not Sakib, sorry, Sakib's got one wrong answer. Suraj, Prateek, Ranjit. Yes, these many students have got it right. बघा बऱ्याच लोकांचं वन कॉमन मिस्टेक स्टुडंट्स. येस, ओमने आपलं आन्सर चेंज केलं आधीचं. व्हॉट इज द कॉमन मिस्टेक सुरुवातीला? राईट, -14 बऱ्याच लोकांचं आलं. राईट साईडला केअरफुली ऑब्झर्व नाही झालं. ठीक आहे, चला, इट्स ओके. बघा जवळपास अर्ध्या बॅचनी उत्तर आता हळूहळू घेता घेता आय कॅन सी जवळपास अर्ध्या बॅचनी उत्तर करेक्ट दिलंय आता. -7 उत्तर येईल. ह्या जवळपास 50 मुलं, बट रिमेनिंग 50 स्टुडंट्स ऑल्सो. Everybody should understand this, students. Everyone. I want every student to understand this. Each and every student in the class. राईट साईडला बघा केअरफुली 100 आहे स्टुडंट्स. सगळ्या बेस लेटर्स मेक कॉमन. सो 10 ची पॉवर आपल्याला करेक्ट करायची आहे, कॉमन आणायची आहे. सगळ्यात आधी 10 ची पॉवर तुम्ही अशी करू शकाल -5 + 3, राईट. पहिल्या लॉनी ऍड होऊन जाणार. आणि अजून हे जे 1000 आहे त्या 1000 ला तुम्ही 10 टू द पॉवर 3 लिहिणार होतात. 10 टू द पॉवर 3 वर गेलं तर 10 टू द पॉवर 3 इंटू -4 म्हणजे -12 येणार. दॅट इज द लेफ्ट हँड साइड स्टुडंट्स. लेफ्ट हँड साइड मध्ये -12 पर्यंत कळत आहे सगळ्यांना. आणि राईट साइड मध्ये 10 चा स्क्वेअर होणार. 10 चा स्क्वेअर होणार तर इट इज 2 इंटू एक्स, अगेन बाय द पॉवर लॉ, राईट. इट इज 2 इंटू एक्स. सो जस्ट केअरफुली सी द पॉवर्स. इथे 10 टू द पॉवर मध्ये ऍडिशन -14 होत आहे. इथे इट इज ट्वाइस एक्स. सो एक्स आन्सर मस्ट बी -7. X answer must be -7. Yes, X answer must be minus. Very good. Yes, Razia is stating one another law, जो की मी इथे वापरला नाहीये, पण तिने करेक्ट लिहिलाय. त्या लॉवरती आपण पुढे क्वेश्चन्स घेऊया कदाचित, राईट. लेट अस टेक क्वेश्चन्स ऑन दॅट लॉ. त्या लॉचा यूज पण करू शकतो आपण. निगेटिव्ह पॉवर इज अ रेसिप्रोकल. व्हेरी करेक्टली स्टेटेड. A⁻⁻m is equal to 1/A⁻m. Very correct. Very correct. Yes. Yes. So एव्हरीवन स्टुडंट्स, इज इट क्लिअर? ज्यांचे उत्तर नव्हते आले आधी, ज्यांनी -7 नव्हता आला, आता समजलाय बेटा? मेनी ऑफ यू, ज्यांनी उत्तर नव्हते दिले प्लीज लिहून घ्या. नसेल समजलं तर विचारा. लाजण्याची काही गरज नाहीये इथे. ठीक आहे, चला, फाईन. ओके, one more question I am giving students.
या आवाज नाही येत आहे. वन मोर क्वेश्चन आय एम गिव्हिंग, बस इतकंच बोललोय मी. आणि आय एम ट्राइंग टू नाउ डिझाइन द लिटिल टफ क्वेश्चन. येस. Yes, this is the full question. We are asked to find x. Okay. Okay. ओके. ओके. कीप ट्राईंग स्टुडंट्स. बाकी जणांकडून पण आपण आन्सर एक्सपेक्ट करतोय. बघूया. ज्यांचं आलं एकदा स्वतःचा आन्सर कन्फर्म करा. आनंद, व्हॉट इज नॉट क्लिअर? स्क्रीन क्लिअर दिसत नाही आहे की प्रश्न समजला नाही असं म्हणायचं आहे? आनंद बंडगर. ओके. 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 ठीक आहे, ठीक आहे. नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन म्हणताय. आनंद, एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे, हा क्वेश्चन आहे. आणि थोडासा ट्विस्ट वाटत असेल, कुठे 4 ची पॉवर आहे, कुठे 8 ची पॉवर आहे. तर जर मी सॉल्व करून देणार आहे बेटा थोड्या वेळात. डोंट वरी, मी सॉल्व करून देणार आहे. मला पटकन 4 ऑप्शन देऊ द्या तिथे, कारण की वेगवेगळे उत्तर आपल्याकडे येतात आहेत. तर एक ऑप्शन 85, पहिला ऑप्शन आहे 85, दुसरा ऑप्शन आहे 54, तिसरा ऑप्शन आहे 56 आणि चौथा ऑप्शन आहे नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज म्हणजे या तिघांपैकी नाही, काहीतरी चौथंच उत्तर, काहीतरी चौथंच उत्तर येणार आहे. ओके, तर लेट अस, आय एम हॅव्हिंग अ क्विक पोल. ABCD पोल मध्ये तुम्हाला हे टाईप करायचं आहे, ABCD पैकी उत्तर काय आहे म्हणून. ओके, मी पोल घेतोय. 20 सेकंदातच ठेवणार आहे मी पोल. क्विकली टाईप करायला आपापले उत्तर. ओनली 20 सेकंड्स पोल. ABCD पैकी आपलं उत्तर टाईप करा. Yes. We have 67 students giving the second option, majority answer.
आणि ए आणि डी ऑप्शन मिळून 20 जणांचं उत्तर आहे. 20 जणांचं आणि 2 जणांचं सी ऑप्शन आहे. राईट, सो इट्स आय एम हॅपी दॅट मेजॉरिटी हॅज गॉट द करेक्ट आन्सर. हा, पण बऱ्याच लोकांचं 85 पण आलं होतं. तर लेटस सी काय चूक झाली होती 85 येणाऱ्यांनी. आनंद आणि अजून बरेच विद्यार्थी ज्यांना प्रश्न थोडासा अनक्लिअर असेल किंवा सॉल्व्ह कसं करायचं कळत नसणार आहे, प्लीज विचारा. ओके, प्लीज समजेपर्यंत विचारा. आय एम स्टार्टिंग टू एक्सप्लेन द सोल्युशन. ठीक आहे, लेफ्ट साइड मध्ये स्टुडंट्स तुम्ही सगळे लॉज लावून द्या. तर लॉज लावले तर आधी काय होणार आहेत बघा, पॉवर्स ऍड होतील न्यूमरेटर मध्ये, कारण बेस सेम आहे आणि मल्टिप्लिकेशन आहे, तर पॉवर्स विल गेट ऍडेड. 44 प्लस 4 प्लस 14 होणार. अच्छा, खाली पण 4 चीच पॉवर आहे तर सबट्रॅक्शन होणार. सो मायनस -31 मायनस ऑफ -31 असं होणार आहे. राईट, कारण डिनॉमिनेटर मध्ये 4 ची पॉवर -30 तर डिनॉमिनेटर मध्ये आहे म्हणजे डिव्हिजन आहे. डिव्हिजन म्हणजे पॉवरची सबट्रॅक्शन होणार आहे. तर पॉवर म्हणजे मायनस ऑफ -31, नक्कीच ते मायनस मायनस प्लस होणार आहे. इज इक्वल टू 8 टू द पॉवर x प्लस 8. अरे, आता अजून एक उत्तर येत आहे बघा, प्रसादचं उत्तर 93 येत आहे, म्हणून त्यांनी नन ऑफ दिस टिक केलं असेल कदाचित. ओके, पण एकदा चेक करूया आपण. लेफ्ट साइडला काय होत आहे, 4 ची पॉवर, इफ यू डू इट ऑल, 44 प्लस 4 48 आणि 14 आणि 31, इज इट 93? अच्छा अच्छा, प्रसादने उत्तर या स्टेपचं दिलंय. ठीक आहे, गुड. 4 टू द पॉवर 93 इज इक्वल टू 8 टू द पॉवर x प्लस 8. इथपर्यंत लिहून घ्या स्टुडंट्स, ज्यांना उत्तर आलं नव्हतं. ज्यांना सेकंड ऑप्शन उत्तर आलेलं नसेल स्पेशली त्यांनी या स्टेप पर्यंत समजून लिहून घ्या. याच्या पुढे मी नेक्स्ट पेजवर मला करायला लागेल. येस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. करेक्ट, करेक्ट. हिंट इज ऑलरेडी गिवन. चॅट बॉक्स मध्ये लेटेस्ट मेसेज बघा. हिंट इज ऑलरेडी गिवन. व्हेरी करेक्ट. येस, आता दोन्ही पॉवर्स कोणी कोणी 85 डायरेक्टली का बरं चूक झाली, कारण डायरेक्टली पॉवर तुम्ही मॅच करून घेतल्या है ना. ज्या स्टुडंट्सनी 93 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 केलं त्यांना एक्स आला असेल 85. दॅट इज अ फर्स्ट ऑप्शन है ना. बट बघा स्टुडंट्स, ना बेस वेगळा आहे. बेस इज नॉट सेम. एका ठिकाणी बेस इज 4, एका ठिकाणी बेस इज 8. तर हाऊ विल यू मेक इट कॉमन? कॉमन थिंग इज, काही जणांनी चुकून असं नका लिहू की 8 इज 4चा स्क्वेअर. नाही 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 स्टुडंट्स, 8 हा 4च्या टेबलमध्ये येतो, पण 4च्या पॉवर मध्ये डायरेक्टली येत नाही. 4चा स्क्वेअर किती आहे? 4 स्क्वेअर इज 16 है ना. 4च्या पॉवर मध्ये 8 येणार नाही. तर वी विल हॅव टू सर्च सच अ नंबर की ज्याच्या पॉवर मध्ये 4 पण येतं आणि 8 पण येतं. सच अ स्मॉल नंबर इज 2. 2च्या पॉवर मध्ये 4 पण येणार आहे, 2च्या पॉवर मध्ये 8 पण येणार आहे. दॅट्स हाऊ वी डू इट. राईट, तर एकदा परत मी ती स्टेप लिहित आहे. 4 टू द पॉवर 93 वी आर हॅव्हिंग ॲज 8 टू द पॉवर x प्लस 8. देन 2च्या पॉवर मध्ये जर आपण लिहिलं तर 2 टू द पॉवर 2. राईट, 2 टू द पॉवर 2. 4 इज 2 टू द पॉवर 2. Let me just erase little bit. Yeah, 2 to the power 2 raised to 93. 2 to the power 2 raised to 93 is equal to, we will have 2 to the power 3 raised to x plus 8, right? 2 to the power 3 raised to x plus 8. Just excuse me for this slightly shy हे होते. आय होप युअर अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज बिंग डन. पॉवर्स मध्ये काय येणार आहे? पॉवर्स मध्ये तर बेस सेम झाला 2 2. पॉवर्स मध्ये बरोबर लॉ लावून द्या. 2 इंटू 93 येणार आहे इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 8 येणार आहे. जस्ट केअरफुली याला सॉल्व्ह करायचंय. 3 ने डिवाइड करून घ्या स्टुडंट्स. ऑल ऑफ यू कॅन डू दॅट. 331s are 93. तर लेफ्ट साइडला यू आर गेटिंग 6. राइट साइड ब्रॅकेट इज 2 raised to 3. ठीक आहे, क्लिअरली इट माइट नॉट बी क्लिअरली विजिबल. लेट मी इरेज इट अँड रीराइट इट. 8 ला आपण लिहिलं 2 raised to 3. 8 we have written as 2 raised to 3, isn't it? 8 is 2 raised to 3.
So final step we are getting 62 is equal to x plus 8. If 62 is x plus 8, then x has to be equal to 54. X has to be equal to 54. Right, students? Yes. जसं रझियानी केलंय that is also okay. But मी 3 कॅन्सल केलं तर थोडंसं शॉर्ट मध्ये येऊन जाणार आहे. Yes, Ranjit Shinde has written also another way. Very good. Very good. ते पण चालेल. रणजित शिंदेने 2 ची पॉवर आणण्याच्या ऐवजी 4 ला 8 च्या पॉवर मध्ये लिहिलं, कारण 8 चा स्क्वेअर 64 होणार आणि त्याचा क्यूब रूट 4 येणार. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी करेक्ट ऑप्शन, व्हेरी करेक्ट मेथड. फॅन्टॅस्टिक. चलो गुड. आय एम हॅपी विथ दॅट. नाईस. व्हेरी गुड. Now we can move little bit to negative powers, students. One law is a raised to minus m. Already a student need this law was written. A raised to minus m is 1 upon a raised to m. 1 upon a raised to m. This is a law. This is one law, students. है ना? अर्पित ने जे लिहिलं that is for a raised to minus 1. a raised to minus 1 असेल तर 1 by a. Right? a raised to minus 2 असेल तर 1 upon a square. a raised to minus 3 असेल तर 1 upon a cube, and so on and so on. Right? Okay. Can we have a simple question on this? Let me see how many of us can answer. 0.001. 0.001 raised to 10 is equal to 1 upon 10 raised to x. Find x. Find x. Find x. Very good, students. Very, very good. I'm really happy with your batch so far. Many students are giving correct answer. घाई न करता जवळपास सगळ्यांनी प्रणव जाधव थोडस तू एका म्हणजे थोडीशी घाई केली सुरुवातीला, बिकॉज एक्सचा आन्सर विचारला होता. तर एक्सचा आन्सर टाईप करताना तुला 10 ची पॉवर नाही लिहायची होती, फक्त एक्सचा आन्सर. येस, मेनी स्टुडंट्स आर गिव्हिंग द करेक्ट आन्सर. व्हेरी गुड स्टुडंट्स, फॅन्टॅस्टिक. पण मेनी मध्ये परत सगळं नाहीये, पूर्ण बॅच नाही येत आहे, म्हणून मला हे सोल्युशन एक्सप्लेन करणं आवश्यक आहे. प्लीज समजून घ्या स्टुडंट. 0.001 0.001 याला आपण लिहू शकतो 1 अपॉन किती? 1 अपॉन 10 का? नाही, 3 डेसिमल्स आहे ना, तिसऱ्या डेसिमलला 1 अपॉन 1000 येणार आहे. सो दिस इज 1 अपॉन 1000. सो 1 अपॉन 1000 रेज्ड टू 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 रेज टू एक्स, असा प्रश्न बनतोय. आता जी खाली पॉवर आहे 1000 ला आपण काय लिहू शकतो? 10 क्यूब लिहू शकतो. 1000 ला आपण 10 क्यूब लिहू शकतो. ओके, तर सगळ्या दोघांचा डिनॉमिनेटर मग 10 येऊन जाईल. राईट? तर क्लिअरली असं चालेल का लिहिलं तर 3 इंटू 10. डिनॉमिनेटर मध्ये लेफ्ट साइडला पॉवर बनते 3 इंटू 10 आणि राईट साइडला पॉवर आहे डिनॉमिनेटर मध्ये एक्स. तर डायरेक्टली एक्स ची व्हॅल्यू तुम्हाला 30 येते. डायरेक्टली एक्स ची व्हॅल्यू युअर गेटिंग एज 30 फ्रॉम दिस. आय एम हॅपी कोणी -x नाही लिहिलं, -30 नाही लिहिलं उत्तर. ठीक आहे, उत्तर इज 30, आन्सर इज 30. व्हेरी गुड.
Okay. Yes. Yes, Gaurav, I will explain again. Gaurav, I'll explain again. एक नेक्स्ट पेज वरती थोडंसं समजून देतोय तुला स्टार्टिंग आणि एकदा परत बघूया. आय एम मोस्ट हॅपी विथ गौरव. इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु हैज टाइप्ड सर नॉट अंडरस्टूड. एक टीचर को इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती जब बिना डरे स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्लास में पूछते हैं कि सर नहीं समझा, वापस बताएंगे क्या. इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच कैन हैपन. इसी को तो स्टूडेंट बोलते हैं. टीचर टीचर का काम करते हैं, टीचर समझाते हैं. स्टूडेंट का काम है समझे तक आगे न बढ़ने देना टीचर को. राइट, समझे तक टीचर को आगे नहीं बढ़ने देना. जब तक खुद को समझता नहीं है टीचर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए. येस. 0.001 याला गौरव आपण काय लिहू शकतो? 1/1000 नाही का लिहू शकत? कसं? जसं 1/10 तुला 10 विचारलं, हा राईट, 1/10 विचारलं असतं तर तू लिहिलं असतं 0.1. तसं 1/100 असतं तर 0.01. तसंच 1/1000 असतं तर 0.001. राईट. तर यू आर क्लिअरली अंडरस्टँडिंग टिल दिस स्टेप. ओके, या स्टेप पर्यंत तुला कळालंय. नाव कल्पेश खांडेकर आवाज येतोय? बाकी स्टुडंट्स आवाज येतोय ना? क्लिअर आहे? आवाज येतोय बेटा? हाँ, क्लियर है, क्लियर है. कल्पेश रिफ्रेश. Kalpesh has to refresh. Okay, okay, no problem, students. Yes, Kalpesh refresh. कनेक्शन थोडंसं रिफ्रेश कोणाच्या साईडला असं होऊ शकतं कधी. डू इट. ओके, गौरव कंटिन्यू करू आपण. खालच्या स्टेप मध्ये या 1000 ला मी लिहिणार आहे 1/10⁻3. 1/1000 ला लिहिणार आहे 10⁻3. ओके, 1000 ला लिहिणार आहे 10⁻3. आणि मी परत आता तुला मागची स्टेप दाखवतोय. ओके, 10⁻3 लिहिलं आणि होल पॉवर 10 होतं बघ. होल पॉवर 10 होतं तर पॉवर लॉ लागणार ना. तर 3 × 10 30 होणार ना. 3 × 10 30 होणार डिनॉमिनेटर मध्ये. सगळं काही डिनॉमिनेटर मध्ये चाललेलं बघ. सगळं काही डिनॉमिनेटर मध्ये चाललेलं. येस. तर मग आता न्यूमरेटर तर सेमच आहे, 1 1. डिनॉमिनेटरला इक्वेट करून टाक. म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये पॉवर 30 आली तर एक्स ची व्हॅल्यू 30 सरळ. निगेटिव्ह पॉवर घेण्याची काही गरजच नाही पडली गौरव. a⁻−m असं लिहिण्याची गरज नाही पडली डायरेक्टली म्हटलं तर. इज इट ओके गौरव? इज इट क्लिअर? पक्का? Aditya Sherke, yes, okay, Gaurav. Aditya Sherke, yesterday's class, we had basic introduction only, and there was a homework of laws of indices. We had basic introduction of science, natural sciences, social sciences, physics, chemistry, biology, etc., etc. Okay, so basic. And some important questions were asked by the students. That part was very important. फिजिक्सचे कोणते पुस्तकं रेफर करायचे, कोणत्या याच्यामधलं काय कधी रेफर करायचं, नीट साठी काय इम्पॉर्टंट, जेई साठी काय इम्पॉर्टंट, MST मधलं त्यातला काय फरक आहे, अशा सगळ्या बेसिक्स गोष्टी होत्या. येस, रेकॉर्डिंग इज अवेलेबल, स्टुडंट्स आर सेइंग, सो दॅट कॅन बी रेफर्ड लेटर ऑन ऑल्सो. ओके, चलो, आय एम कमिंग टू लास्ट 2 लॉज. अगेन रझिया ऑलरेडी रोट डाऊन वन ऑफ दोज लॉज. जेव्हा बेस वेगळे असतील स्टुडंट्स, वेन बेस आर डिफरंट, सपोज a⁻m आहे, ओके, पण b इज अ बेस, वेगळा बेस आहे दुसऱ्या ठिकाणी, बेस इज डिफरंट. ओके, इन सच थिंग पॉवर्स पण डिफरंट नसतील तुम्हाला, पॉवर मग सेम असतील. ओके, such law will be there, and such law also exists only for addition and sorry, multiplication and division. Such law also exists only for multiplication and division, and you have seen such laws again in the school level. Ithe power is same, the bases will get multiplied in the first law. In the next law, bases will get divided. A by b whole raised to m. Okay, हे ज्या स्टुडंट्सनी लॉज मध्ये नव्हतं लिहिलं, प्लीज लिहून घ्या. लिहिलेलं असेल ऑलरेडी तर रिपीट करण्याची गरज नाही आहे. तुम्हाला विथ एक्झाम्पल मी लिहायला सांगितलं होतं तर एक्झाम्पल पण लिहिले असतील. अँड वन मोर लॉ is a raised to 0 is equal to 1.
a raised to 0 is equal to 1. This is the law. चला क्विकली लिहून घ्या स्टुडंट्स, यांनी नव्हतं लिहिलेलं. येस येस येस, करेक्ट. येस स्टुडंट्स, चॅट बॉक्स मध्ये जे काही लिहिलंय दॅट इज व्हेरी मच करेक्ट. ट्रू. Again, in most of these laws, the base cannot be 0. That you have to be careful about. 0 raised to 0 is also not 1. The base cannot be 0. In many of these laws, base cannot be 0. That is a restriction which you're having. Oh yes. Oh yes. So true. So true. बट रजिया दोज लॉज आहे ना थोडेसे रॅडिकलशी संबंधित होतात. दे आर रिलेटेड टू रॅडिकल्स. irrational numbers come in. So I have directly not mentioned it so far, but you're so correct. So Arpit also has written it very well. mth root of a, व्हेरी करेक्ट. अजून काही लॉज आहेत स्टुडंट्स, आधी हे लिहून घ्या. आधी हे सगळ्यांनी झालं, याच्यावरती एखाद दोन क्वेश्चन बघूया, तुम्हाला करता येतात आहे. and then we will proceed to the root वाले law पण. चलो ठीक है. Please solve this question. You have to find the value of x. Okay, again you have to find the value of x. No, 215 nahi, it is also 25. It's secondly also it is 25. Question मध्ये काही twist nahi hai, tough nahi hai, directly it is 25. Okay, okay. Yes. Anusha Pujari, well done. You have corrected your answer. Arya also corrected the answer. Om also needs to correct the answer, I believe. 2 is the correct answer. Yes. Yes, yes. Prathamesh, Divya, Raj. I'm happy. नवीन नवीन नावं येतात आहे, ज्यांनी उत्तर सध्यापर्यंत देत नव्हते ते पण काही जण उत्तर देतात आहे. व्हेरी गुड. म्हणजे होमवर्क थोडंसं केलेलं आहे. गुड. श्रेयस, प्रतीक, राहुल, वेल डन बॉयज, वेल डन. Rahul, yes. Very good students. Very good. बघा, how do we solve? Yes, yes. बऱ्याच जणांचे उत्तर येतात आहे. ज्यांना ट्राय झालंय बट आन्सर आला नाहीये, प्लीज टू 6 आहे. राईट, डिनॉमिनेटरला पण 64 येते, 2 raised to 6 आहे. न्यूमरेटर इज ऑल्सो 10 to the power 6. Denominator is 2 to the power 6. So effectively this will get solved to 10 by 2. 10 by 2 whole to the power 6 means it will be what to the power 6? 5 to the power 6. It will be 5 to the power 6. अच्छा, राइट साइड में सर देर इज नो 5. राइट साइड मध्ये तर सर देर इज 25 ओनली. अरे त्या 25 ला करून घेऊ ना त्याला पण 5. तर 5 टू द पॉवर 2 लिहू शकतो आपण 25 ला, आणि दुसऱ्या ठिकाणी पण 5 टू द पॉवर 2 लिहिलं, त्याला अजून पॉवर x आहे, तर इट विल बिकम ट्वाइस x ऍज पर द पॉवर लॉ.
आता मग या दोघांना आपल्याला इक्वल करायचं आहे. दिस शुड बी इक्वल टू दिस, म्हणून पॉवर्स मॅच करून घ्या. 6 विल बी इक्वल टू 2 प्लस ट्वाइस एक्स. 2 plus twice x. Yes, again Ranjit Shinde, I am very happy with you. रणजित अजून नवीन नवीन मेथड्सनी वेगळे ट्रान्सफॉर्मेशन्स करून उत्तर काढून दाखवत आहे. दॅट्स सो करेक्ट. येस, व्हेरी ट्रू. सो वन मेथड आय हॅव सॉल्व्ड ऑन द बोर्ड. ओके, काही स्टुडंट्सनी थोडं अजून वेगळ्या दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या मेथडनी पण थोडंसं केलं असेल. करेक्ट मेथड वापरून तुमचा आन्सर करेक्ट आला असेल तो फुल मार्क्स, 100% अप्रिशिएटेड. व्हेरी नाईस. अच्छा, एक थोडासा वर्ड प्रॉब्लेम सारखा आपण घेऊया. लेट मी सी इफ यू कॅन आन्सर. आता थोडंसं आपण जास्त फिजिक्स कडे वळतोय याच्यामध्ये. इन फिजिक्स, इन सायन्स यू विल बी एन्काउंटरिंग सच क्वेश्चन्स. सध्या कोरोना सुरू आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की ऑक्सिजनचा तुटवडा पडतोय. इन हॉस्पिटल्स लॉट ऑफ ऑक्सिजन इज नीडेड, राईट? इन हॉस्पिटल्स लॉट ऑफ ऑक्सिजन इज बीइंग नीडेड. अच्छा, आपण एक काम करूया. आपण एका हॉस्पिटलमध्ये, इन वन हॉस्पिटल आपण एक बिग मोठा चेंबर भरून ऑक्सिजन घेऊन जाऊया. ठीक आहे, एका हॉस्पिटलमध्ये असं ऑक्सिजन घेऊन जाऊया. कसं? एक असा 1 मीटरचा असा क्यूब घेऊया. 1 मीटर म्हणजे जवळपास 3 फूट असतं. बऱ्यापैकी मोठा क्यूब आहे. ठीक आहे, हा क्यूब भरून पूर्ण ऑक्सिजन घेऊन गेलो आपण. हा पूर्ण क्यूब भरून आपण ऑक्सिजन घेऊन गेलो. असे किती क्यूब्स दिले आपण? वेल, असे आपण 100 क्यूब्स अवेलेबल करून दिले. असे 100 क्यूब्स पाठवून दिले एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये मुंबईला. ठीक आहे, तिथून पूर्ण मुंबईला ज्या ज्या हॉस्पिटलमध्ये लागतील तिथून आपण ट्रान्सफर करून देऊया. ओके ओके, गुड. ठीक आहे. आता माझा प्रश्न काय आहे की एका दिवसात, फॉर एक्झाम्पल, एका दिवसात एका पेशंटला येस, व्हॉइस इज अगेन बॅक. तर एका पेशंटला 5 लिटर, आता येतोय क्लिअर आवाज सगळ्यांना? आता येतोय आवाज? येस. ओके, मयंक, you will find difficulty in understanding Marathi, is it? Mayank has difficulty in understanding Marathi? Then I can speak in Hindi, चालेल. ओके, ठीक है. कल के पोल में जो हमने मयंक लिया था तो ज्यादा स्टूडेंट्स ने इंग्लिश बोला था, इसलिए मैं मराठी भी बीच में ऐड कर रहा था. बट अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स है जिनको मराठी समझने में प्रॉब्लम जा रहा है तो बिल्कुल हिंदी आ जाएगा. थोड़ी थोड़ी मराठी तुझे समझ आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है. बट अगर कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आए तो पूछ सकता है. सो आई कैन स्पीक इन हिंदी. हिंदी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा तो चलेगा. तो अगर एक पेशेंट को एक दिन में लेट से 5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ रहा है. ओके, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है. जो पेशेंट्स कोरोना के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है उनको एक्स्ट्रा 5 लीटर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर से प्रोवाइड करना पड़ रहा है. उनका ऑक्सीजन सिलेंडर 5 लीटर का भरना पड़ रहा है.
ठीक है, तो हाउ मेनी पेशेंट्स को आप सेवा दे सकते हो, हाउ मेनी पेशेंट्स कैन बी सर्व्ड विद दीज 100 क्यूब्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मुंबई का स्टोरी मान रहे हैं अपन, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत लोगों को जरूरत है, तो हाउ मेनी पेशेंट्स इन द सिटी कैन बी सर्व्ड, ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लॉज ऑफ इंडाइसिस अभी पढ़ा उसका भी काम आ जाएगा, और आपको बेसिक यूनिट्स का काम आ जाएगा। यहां से हम थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में आ रहे हैं। ओके, ठीक है, कुछ आंसर्स आना शुरू हो गए। एवरीबडी ट्राई, हैव योर ओन आंसर। ओके 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 ओके, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गिविंग 20,000 एज द आंसर। 20,000 इज द आंसर कमिंग फ्रॉम मैक्सिमम स्टूडेंट्स। 2 लाख लिखा है क्या किसी ने? शायद 2 lakhs, आई एम चेकिंग, नहीं, शायद सभी के जीरो सही है, 20,000 तक आ रहा है। 2 लाख किसी ने लिखा है, या फ्यू स्टूडेंट्स। ओम फराटे का आंसर 2 लाख आया है। प्रणव का आंसर, प्रणव आई विश तेरा आंसर सही होता, कि इतने से हम 2 × 10⁸ मतलब 20 करोड़ लोगों को पहुंचा सकते, तो पूरा मुंबई नहीं, पूरा महाराष्ट्र के हर एक को हम प्रोवाइड कर सकते थे। और कोरोना पेशेंट्स तो पूरे इंडिया से भी ज्यादा के कोरोना पेशेंट्स को हम प्रोवाइड कर सकते थे। क्या सच्ची इतना ऑक्सीजन है यहाँ पे? क्वेश्चन में लेट अस सी। ओके, ही चेंज द आंसर। ठीक है प्रणव, यू चेंज द आंसर, राइट। तो देखो 10 की पावर की गड़बड़ से कितना बड़ा घोटाला हो सकता है स्टूडेंट्स। इफ यू जस्ट 10 की पावर आप बदल देंगे थोड़ा सा, इसलिए इंडाइसिस का लॉ मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एंड दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग सो मच ऑन दैट। अगर आप 10 की पावर में 1 2 3 भी पावर गड़बड़ कर देते हो, तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। यस, आई एम हैप्पी, 20,000 बहुत सही आंसर लाया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। अच्छा, अब इतना टाइम में जिन स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया, मैं नहीं मानता कि उनको कैलकुलेशन में तकलीफ थी, अब मुझे लगता है आपको थोड़ा फिजिक्स के यूनिट कन्वर्शन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ हो सकता है। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द सॉल्यूशंस। 1 लीटर मतलब क्या होता है रे? 1 लीटर, ये लीटर किस चीज का यूनिट है? एक मेरे ये सवाल का जवाब दो। लीटर इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? लीटर किस चीज का यूनिट है? लेंथ का यूनिट है, मास का यूनिट है, किस चीज का? ओके, लिक्विड मत लिखो, लिक्विड मत लिखो। देखो जनरली लिक्विड के लिए यूज करते हैं, हाँ, लेकिन मैं सॉलिड के लिए भी यूज कर सकता हूँ लीटर्स, क्यों नहीं यूज कर सकता? सॉलिड्स के लिए भी यूज कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि लीटर के लिए ही, लिक्विड के लिए या फ्लूइड के लिए यूज करना है ना। लीटर वी कैन यूज फॉर एनी सब्सटेंस, एब्सोल्युटली एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस तो क्या, बिना सब्सटेंस के भी मैं लीटर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूछा विच फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। ओके, अच्छा, वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो डू यू नो 1 लीटर ये किस चीज का क्यूब है? 1 लीटर किस चीज का क्यूब है? 1 liter is cube of dm. Do you know this students? 1 डेसीमीटर dm का क्यूब है। 1 डेसीमीटर का क्यूब है, 1 डेसीमीटर, यस यस, 1 डेसीमीटर का क्यूब है। आदित्य, अगेन तेरे एक जीरो में गड़बड़ हो गई है, आदित्य एक जीरो में गड़बड़ हो गई। 1 डेसीमीटर का क्यूब है 1 लीटर। ओके, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर आएंगे? दैट वॉज द क्वेश्चन। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर आएंगे? 1 मीटर क्यूब का मतलब सबको समझ रहा है? यस, 1000 इज द करेक्ट आंसर। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट इज द मीनिंग। वॉल्यूम में ना लेंथ इंटू लेंथ होगा। ये आपने मैथ्स में मेंसुरेशन में भी देखा हुआ है, राइट? 3D ऑब्जेक्ट्स का जब एरिया, वॉल्यूम्स ऐसे चैप्टर देखे होंगे तब। नाउ 1 मीटर और 1 डेसीमीटर, डेसी का मतलब ही 10 होता है स्टूडेंट्स, डेसी डेका स्टैंड्स फॉर 10। तो 1 मीटर कंटेन्स 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, ठीक है।
तो डेसीमीटर छोटा यूनिट है, तो यहाँ पे 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर। मैं बेसिक मैथ से जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, है डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं रट रहे हम समझ रहे हैं कि कहाँ से ये 1000 आ रहा है। नो, डेसीमीटर भूमिका, इट इज डेसीमीटर। अभी मैंने डेसी लीटर्स में नहीं लिखा, मैं 1 लीटर की बात करूंगा थोड़ी देर में। अभी मैं डेसीमीटर है भूमिका, 1 मीटर को 1 डेसीमीटर लिखेंगे। ओके यस, मैं अभी तक लीटर में नहीं आया हूं, अभी तक यहाँ पे लीटर नहीं आया है। ठीक है, अब देखना 10 इंटू 10 हो जाएगा 1000, और डीएम इंटू डीएम इंटू डीएम हो जाएगा डीएम क्यूब, मतलब डेसीमीटर का क्यूब। और ऊपर हमने लिखा कि इसी को लीटर बोलते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर बोलते हैं। सो अब 1000 डीएम क्यूब को आई कैन राइट 1000 लीटर्स, डेसीमीटर क्यूब को वी कैन राइट एज 1000 लीटर्स। तो अब आगे अपना एक क्या रिलेशन आ गया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डीएम क्यूब, मतलब 1000 लीटर्स। जो चीज को मैं बॉक्स में कर रहा हूं, जिनको नहीं पता थी उन्होंने लिखने के बाद याद भी करना है, खुद के नोट्स में भी आपको उसको बॉक्स करके रखना है। ओके, खुद के नोट्स में भी आपको उसको बॉक्स करके रखना है। अब आगे सवाल आसान था स्टूडेंट्स। एक जो क्यूब था, हमने बड़ा सा क्यूब दिया था, उसमें 1000 लीटर्स है, ऐसे 100 क्यूब हमने दे दिए था, तो 1000 लीटर हर एक में अवेलेबल है। वैसे 100 क्यूब हमने प्रोवाइड कर दिए थे, ट्रांसपोर्ट कर दिए थे हॉस्पिटल में, इतना पूरा ऑक्सीजन अवेलेबल है। और हर पेशेंट को 5 चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, सो दैट विल बी योर आंसर। इतने सारे पेशेंट्स को आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाओगे, अज्यूमिंग कि कोई लॉस नहीं हो रहा है। ओके, बड़े क्यूब में से छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर में मास्क वाले इसमें ट्रांसफर करते करते आप जैसे फुग्गे में से, बलून में से हवा उड़ जाती है, वैसे ऑक्सीजन को उड़ने नहीं दोगे। बहुत बहुत कीमती है इस टाइम पे ऑक्सीजन, यहाँ खेल नहीं चलेगा। यू हैव टू बी, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो केयरफुली, बिना लॉस के, एब्सोल्युटली बिना लॉस के अगर करेंगे तो 20,000 पेशेंट्स को आप सर्विस दे पाओगे, ऑक्सीजन प्रोविजन कर पाएंगे। डू यू अग्री स्टूडेंट्स? किसी को री एक्सप्लेनेशन चाहिए फिर से? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सेंटीमीटर से क्या संबंध है ये पूछना चाहिए था, रंजीत का क्वेश्चन है, सेंटीमीटर से क्या संबंध है। आई एक्सप्लेन सेंटीमीटर से क्या संबंध है। ये पेज लिख लो, पहले आंसर पे आ जाने दो स्टूडेंट्स को, फिर सेंटीमीटर का संबंध करते हैं। अवधूत एंड कल्पेश, थैंक यू बच्चों, जिन्होंने पूछा कि नहीं समझा उनको शाबाशी मिलेगी। यस, पहले से मैं स्टेप समझा रहा हूं। ओके, सॉल्यूशन में देखो, जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये लीटर की डेफिनेशन ही है, ये लीटर की डेफिनेशन ही है। ओके यस, तो यूनिट के बारे में समझाना है आपको, तो यूनिट है स्टूडेंट, आपको मैं ऐसे समझा देता हूं, यहां पे आ जाओ। यहां पे मीटर एक यूनिट है, राइट, मीटर एक यूनिट है। उससे 10 गुना छोटा, 10 गुना बड़ा, ऐसे क्या क्या यूनिट है ये हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, द वेरी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाला है। इससे 10 गुना छोटा यूनिट होता है स्टूडेंट्स डीएम, और 10 गुना छोटा अगर मैं करूंगा तो यूनिट होता है सीएम, सेंटीमीटर। सबको पता है सेंटीमीटर इज 100 टाइम्स स्मॉलर, और उससे भी और 10 टाइम छोटा कर देंगे तो मिलीमीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एमएम में लिख रहा हूं। इज इट ओके? यहाँ मीटर। ओके, और बड़े में जाओगे तो 10 गुना का नाम डेका है, किसी को पता होगा। 100 गुना का नाम हेक्टो है, किसी को पता होगा। नहीं तो 1000 गुना का नाम किलोमीटर है, ये सबको पता है। 1000 गुना किलोमीटर, ये सबको पता है। ओके, जो मैं एक एक आगे जा रहा हूं उसका मतलब है, एक एक जो मैं आगे जा रहा हूं उसका मतलब है 10-10 गुना मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, जब जब मैं इक्वल डिस्टेंस थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पे इस स्केल में, इसका मीनिंग है 10 गुना। आपको समझाने के लिए वहां ऐसा लिखा हुआ है, इसको लॉगरिदमिक स्केल्स बोलते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे सिलेबस में। तो ये किलोमीटर है।
यस, शरद ने लिख दिया है और चीजें डिटेल्स में, फैंटास्टिक। ओके, और इसके बहुत आगे तक हम देखेंगे, नीचे भी मिलीमीटर के आगे माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो देखेंगे, ऊपर किलो के आगे मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा देखेंगे। ओके, ये सब चीजें आएगी फिजिक्स में, ये सब चीजें फिजिक्स में आने वाली है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर में आने वाली है। ओके, आई थिंक अकेडमी का फिर से थोड़ा सा नेट इश्यू आया था। आपको स्क्रीन दिख पा रही है स्टूडेंट्स कि फ्रीज हो गई है स्क्रीन? Screen is freezed, right? Okay, yeah, I'm trying to refresh the connection again from this side. Yeah, it is slightly freezed. Okay, just give me a few seconds, students. I'm trying to re-establish the LAN connection here. Yes, I think it will be back in a minute or so. I'm expecting. तब तक के लिए आपको मेरी आवाज आ पा रही है? तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझा था उनके लिए बता रहा हूँ वापस। देखो, 1 मीटर से 10 गुना छोटा यूनिट है डेसीमीटर, उससे 10 गुना छोटा सेंटीमीटर, उससे 10 गुना छोटा मिलीमीटर। यस, रंजीत ने जो जवाब पूछा था, उस सवाल जो पूछा था उसका जवाब उसने ऑलमोस्ट दे दिया। बच्चे क्यूब कर दे, वहां पे सेंटीमीटर क्यूब है। ओके रंजीत, तेरा जवाब सही है, 1 cm क्यूब कर दे। 1 cm क्यूब विल बी 0.001 लीटर, दैट इज 1 मिली लीटर बोल सकते हो उसको। ठीक है, उस पर मैं बाद में आऊंगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो सवाल पूछेंगे। अभी है मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन में 1 मीटर का 10 गुना छोटा 1 डेसीमीटर है, बस इतना पहले याद रखना है आपको। और डेसीमीटर को जब खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज डीएम इंटू डीएम इंटू डीएम करेंगे, दैट इज डेसीमीटर क्यूब करेंगे, दैट इज 1 लीटर। ये डेफिनेशन है 1 लीटर की, डेफिनेशन ये 1 लीटर, ये वॉल्यूम का यूनिट, उसी को डिफाइन किया गया व्हेनेवर इट इज 1 डेसीमीटर का क्यूब। मैंने चैट बॉक्स में फिर से टाइप किया है अभी। इस स्टेप से आपको सॉल्यूशन की शुरुआत करनी थी। तो अगर 1 लीटर है 1 डीएम क्यूब, तो मेरे सवाल में तो 1 मीटर क्यूब था, मेरे सवाल में तो 1 मीटर क्यूब का ऑक्सीजन अवेलेबल था। तो 1 मीटर क्यूब का ऑक्सीजन हो जाएगा 10 डीएम का क्यूब, है ना, 10 डीएम का क्यूब, 10 डीएम का क्यूब, 10 डीएम का पूरा क्यूब। चैट बॉक्स में देखिए स्टूडेंट्स, जिनको तकलीफ जा रही है कुछ समझने में, चैट बॉक्स पे एक बार देख लीजिए। मैंने पूरा फिर से दिखा रहा हूं आपको। तो इट इज 1000 डीएम क्यूब हो जाएगा, 1000 डीएम क्यूब तक जाएगा। और अगर 1000 डीएम क्यूब आ रहा है, इसका ही मतलब इट इज 1000 लीटर्स, क्योंकि डीएम क्यूब का मतलब ही लीटर है, ये पहले स्टेप में बता दिया। यस, ये बात अब समझ में आ रही है बच्चों जिन्होंने पूछा था सवाल? राहुल श्रवण, सॉरी श्रवण इंगुले, श्रावण राहुल इंगुले, श्रावण एज वेल एज ओम। यस, ओम को क्लियर है, श्रावण क्लियर है बेटा? यस, फैंटास्टिक, ठीक है। तो ये आप लिख लो, उसके आगे आपको आ जाएगा। यस, डीएम मतलब डेसीमीटर। यस, स्पेलिंग तूने थोड़ा एक 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 लेटर चेंज है स्पेलिंग में। डीएम का डी स्टैंड्स फॉर डेसी और एम स्टैंड्स फॉर मीटर, मैंने जवाब लिखा है, ठीक है। यस, वो डीएम स्टैंड्स फॉर डेसी मीटर, डेसी, DECI, डेसी। यस, ठीक है। चलो, तब नेट कनेक्शन भी रिफ्रेश हो चुका है। हम्म, तो सबको इस स्टेप तक आगे
जिसको कंप्लीट करना था सॉल्यूशन जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। प्रथमेश का क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसी पे हम आने वाले हैं पहले चैप्टर में। ऑल द सिंबल्स एंड ऑल हम लिखेंगे। चलो ठीक है, अभी मौका आ ही गया है तो आई थिंक अभी भी बात कर सकते हैं। आई एम कमिंग टू दैट इन अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट रुको 1 मिनट। लेट मी कम टू दिस। जिनको डेसी डेका नहीं याद आ रहा था ना स्टूडेंट्स, उनके लिए एक अपने पास टेबल है, पूरा टेबल है। एनसीईआरटी बुक जिनके पास है, द यूनिट्स वाले चैप्टर में आपको ये मिलेगा, स्टेट बोर्ड बुक में भी मिलना चाहिए। बाकी सबके लिए मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगा, वहां से आप देखोगे। सभी सिंबल्स लिखा देता हूं आपको। इनको कहते हैं प्रीफिक्सेस। So we want prefixes with symbols. Okay. चैप्टर का पूरा नाम है बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यस, डेका का सिंबल जिसने सवाल पूछा था आपके सामने सिंबल है, स्मॉल डी ए। ये सिंबल हर चीज को लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्क्रीन क्लियर है ना बच्चों? I'll send it on the group also, don't worry, I'll send it on the group also. ये आपके ग्रुप पे भी आ जाएगा आज। अब स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए सबको। तो 10 गुना छोटा जो है देखो राइट साइड में छोटे छोटे है, 10 गुना छोटा डेसी, सेंटी, मिली, उन सबके सिंबल डी सी स्मॉल एम, बाद माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो, यहां तक आपको सिंबल्स दिए गए, ठीक है। अभी सबको विजिबल है ना? सबका नाम है, पावर्स में है, पावर्स कितनी है फैक्टर की, सिंबल भी है, ठीक है।
डेका का सिंबल और डेसी का सिंबल सेम नहीं दे सकते ना अलग अलग चीजों के लिए, तो डेसी का सिंबल हमने स्मॉल डी यूज किया, इसलिए डेका का सिंबल अलग है, डेका का सिंबल स्मॉल डी ए है। देन हेक्टो का सिंबल है स्टूडेंट्स, हेक्टो इज स्मॉल एच, किलो इज स्मॉल के, किलो इज स्मॉल के। उसके बाद जो बड़े बड़े सिंबल है मेगा गीगा टेरा पेटा वो सब कैपिटल लेटर्स है, दे ऑल आर कैपिटल लेटर्स, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा 10 to the power 24 तक के सिंबल्स। Vinayak has put it here also from NCERT book. Fantastic. I believe it is from NCERT type of a thing. तो NCERT से यहाँ रखा हुआ है। Fantastic. Good. NCERT में 18 तक दिया है, NCERT में 18 तक दिया हुआ है ना। We have gone little ahead 24 तक यहाँ पे, तो ये लिख लीजिए, मैं 24 तक का भी ग्रुप पे आपको ये मिल जाएगा। 24 तक आसान है, 18 के बाद 24 तक आसान है, तीन तीन का पावर्स ऐड करना है। आई होप आप ये लिख ले रहे हो स्टूडेंट्स, एक बार नोट्स में लिख लेना भी अच्छा है, ग्रुप पे आ जाएगा कोई बात नहीं है, ग्रुप पे आ जाएगा, बट एक बार लिख लो, खुद को याद हो जाएगा आपको। टिल 24 लिख लीजिए, हम अभी याद कर लेते हैं, कल तक के लिए याद नहीं रखेंगे, अभी याद कर लेते सब लोग मिलके। पहले आप लोग लिख लो फिर याद कर लेते हैं। बहुत सिमिलैरिटीज है स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट में, दोनों का 21-21 वाला जेड है, एक जगह कैपिटल जेड एक जगह स्मॉल जेड, 24-24 पावर वाला वाई है दोनों का, एक जगह कैपिटल वाई बड़े में और निगेटिव पावर में स्मॉल वाई। काही जणांना स्क्रीन दिसत नाही आहे, दीज स्टुडंट्स विल हॅव टू रिफ्रेश देअर कनेक्शन, कारण की स्क्रीन बाकी सगळ्यांना दिसत आहे। एकदा नेट रिफ्रेश करून घ्या स्टुडंट्स, कारण की बाकी सगळ्यांना स्क्रीन दिसत आहे। ठीक आहे, ज्यांना स्क्रीन दिसत नसेल ना सध्या, त्यांना पण आय एम इमिजिएटली पुटिंग ऑन द ग्रुप। ओके, सध्याच ग्रुप वरती मला पुट करू द्या, सो यू कॅन युटिलाइज इट। येस, 9:30 तक क्लास है, 5 ही मिनट है, 9:30 तक क्लास है, तो 6 मिनट बाकी है, आप उसके बाद ले सकते हैं। आदित्य शेळके, नंबर सगळ्यांकडे माझा आहे, इन द सेन्स जो नवीन ग्रुप बनवला आहे प्रशांत सरांनी, अबाउट द फिजिक्स डाउट्स ग्रुप, ज्याच्यावरती मी पोस्ट पण करतोय, तर त्या ग्रुपवरती सरांच्या व्यतिरिक्त ऍडमिनचं जे नाव आहे दॅट इज माय नंबर। ओके, तुम्हाला सगळ्या टीचर्सचे तुम्हाला नंबर्स मिळतील, दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम। येस, इवन अदरवाइज मी टाईप करून दिलंय।
चला स्टुडंट्स, एकदा आपण बघूया, रिवाइज करूया. अच्छा, ग्रुप पे 80 कुछ तो भी 10-20 एक स्टूडेंट्स ही ज्वाइन होना बाकी है. मेन इस पे सर ने उसकी लिंक डाली होगी, इफ आई बिलीव. वहीं से तो स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं ना बच्चों. मेन इस पे लिंक डाली है कि नहीं? कैसे ज्वाइन हुए आप फिजिक्स डाउट्स ग्रुप में स्टूडेंट्स? मेन ग्रुप से ज्वाइन हुए हो ना? राइट, मेन ग्रुप से ज्वाइन हुए तो उस पर लिंक आ गई है बच्चों. राइट, यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम दैट ग्रुप, और वहां पे एडमिन करके आपको मेरा नंबर भी मिलेगा. मैंने टाइप भी किया हुआ है. किसी को तकलीफ जाती है तो मुझे सेंड करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा वापस से. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, एक बार मैं चाहता हूं कि हम लोग यहीं पे इससे कंफर्टेबल हो जाए. चलो पहले छोटे इसमें देखो, डेसी सेंटीमिली तक सबको याद है. आई थिंक माइक्रो नैनो भी आपको स्कूल लेवल में पता था. डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो, यहां तक क्लियर हो स्टूडेंट्स? डेसी सेंटीमिली, दैट इज 1 2 3, निगेटिव में 1 2 3, फिर 3 3 से नीचे जाना है, 6 9. राइट, -6 -9, सब कुछ माइनस की बात करें तो डेसी सेंटीमिली, माइक्रो इज 10⁻⁻⁶, नैनो इज 10⁻⁹. उसके आगे 3 का ग्रुप एक साथ याद रखना, 12 15 18. 12 15 18 एक साथ याद रखना, पिको फेम्टो एट्टो. इसको आपको एक साथ याद रख सकते हो. पिको फेम्टो एट्टो एक साथ याद रखना है. ओके, और जेट जेप्टो योक्टो. जेप्टो योक्टो इन दोनों को अलग से. वैसे ही हायर पावर्स में 3 3 के ग्रुप्स में याद रखोगे. डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, ऐसे याद रखना. थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. डेका हेक्टो किलो 1 2 3. उसके बाद में याद रखना मेगा गीगा. उसके बाद में याद रखना मेगा गीगा. या आपने कंप्यूटर साइंस जैसे भी थोड़ा पढ़ा होगा स्कूल में, कभी मेगाबाइट गीगाबाइट बोलते हैं ना अपन, टेराबाइट तक बोलते हैं ना, तो मेगा गीगा. जीबी में अपना साइज मेजर करते हैं मेमोरी की, तो मेगा इज 10⁻⁶, गीगा इज 10⁻⁹. उसके बाद वहीं पे 12 15 18 इस टेरा पेटा एक्सा. ओके, और 21 चॉइसेस जेटा योटा. जेटा योटा एक बार आप क्लासरूम में रिवाइज करते हैं, देखते हैं किसको याद है बिना देखे. 10 की पावर्स पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी जाएंगे. पॉजिटिव में मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं यहाँ पे. वी विल स्टॉप विद दिस रिविजन. देखते हैं किसको याद है. 10 की पावर में प्लस में और माइनस में 1 2 3, 1 2 3. उसके बाद देर इज 6, देर इज 9, देन देर इज 12 15 18, 12 15 18, and then there is 21 and 24, है ना, 21 24. यहां तक वी हैव टू सी इन द पावर्स ऑफ 10. निगेटिव पावर्स में पहले याद किया हमने, डेसी का सिंबल डी, देन सेंटी का सी, मिली का एम. ठीक है, डी सी एम. देन माइक्रो नैनो. ठीक है, यहां तक 9 हो गया. फिर मैंने आपको बोला 3 के ग्रुप में 12 15 18 याद रखना है. ठीक है, 12 15 18 क्या है, छोटे में है पिको फेम्टो एट्टो. पिको फेम्टो एट्टो, पी एफ ए. पिको फेम्टो एट्टो, पी एफ ए, है ना. अभी के सिंबल याद कर लो, बड़े नाम में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है. फिर 21 वाला स्मॉल जेड और 24 वाला स्मॉल वाई. देन हायर में डेका. डेका का सिंबल यहां से अपना डिस्कशन शुरू हुआ था. डेसी डेका दोनों का सिंबल थोड़ा अलग है. फिर डेका के बाद हेक्टो आएगा ना. डेका के बाद हेक्टो आएगा, हेक्टो के बाद किलो आएगा. किलो तक सब जानते हैं, फेमस है. उसके बाद 6 पावर में क्या आ रहा है, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा. वेरी गुड जी. ठीक है, फिर टेरा पेटा एक्सा. टेरा पेटा एक्सा. ठीक है, टेरा पेटा एक्सा, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल ई. टेरा पेटा एक्सा, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल ई. और आगे के तो स्मॉल वाले से मैच करते हैं, बस कैपिटल लेटर करना है. कैपिटल जेड और कैपिटल वाई. ठीक है स्टूडेंट्स. ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा होमवर्क बना के आपको ग्रुप पे डाल दूंगा. तो आज लॉज वगैरह तो आपको लिखना नहीं है. आज का होमवर्क आपके ग्रुप पे आ जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, मेन इस पे भी डालने का बोल दूंगा मैं आज, और डाउट्स वाले ग्रुप पे भी डाल दूंगा. दोनों ग्रुप पे, डाउट्स वाला ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो आ जाइए. इस ग्रुप पे ही होमवर्क आपका आज का आ जाएगा. राइट, चलो थैंक यू स्टूडेंट्स. लेट्स लॉग आउट. या यस, गुड डे स्टूडेंट्स, बाय. या, वेलकम स्टूडेंट्स.